All right. So yeah, Chaitanya, please raise your hand. Okay. Then Arushi. Yeah. Okay. Then Sargam. Perfectly fine. You need to speak up. Dhruv. Okay. Tambul. Perfectly fine. I hope you have your notebooks in front of you. You have a pen and paper or something to write everything. है आपके पास? Okay. Okay. So, ma'am, Neha ma'am is coordinating or Pallavi ma'am is coordinating? May I know? Your voice, I did not get your voice. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Okay. So, this session is for how long? How much time do we have? 1 hour, I guess. 1 hour we have. So, okay, till 9:30 we have. Right. And Monica ma'am is going to be there. She is going to be there throughout the session. So that in case there is any problem, she will be able perfectly fine. Perfectly fine. तो बेटा जी आप लोगों को दिख रहा है ना सब कुछ? कोई परेशानी तो नहीं है? You need to be louder. I am not able to get your voice. Yes, sir. Okay. So there is no lag. I'm just moving my hands. I hope there is no lag. मैं लिख रहा हूँ तो कोई lag तो नहीं है? No, sir. Everything is fine. Very clear. तो किसी point पे कोई lag हो, because I'm right now sharing the content in HD. So I mean there might be a lag because of the network speeds. तो अगर हो तो आप एकदम बताना. Then we'll reduce the quality and then we'll have to continue the lecture. ठीक है? तो अभी आप लोगों का आईने की क्लियरिंग कितना हो गया है? थोड़ा तेज बोलो बेटा जी, आपकी आवाज ना कम आ रही है मेरे पास. आयनिक कितना हो गया है? चैतन्य, you speak up. How much ionic has been covered? The topic has been finished in school. Topic अभी? Finished. I mean, you need to speak up. Be a bit more close to the mic or be a bit louder. Hello. The topic finished हो गया. Topic? Finished हो गया. Erase हो गया है. That topic is finished in school. Topic has been finished in school. Okay, perfectly They fine. already have done it. They've already done. ठीक है. They already have done. Sounds good. ठीक है. So I'll just try to. ठीक है, तो फिर तो आज we'll try to fill it. तो बफर की बात कर लेते हैं सीधा. फिर तो स्कूल में हो गया है तो we can talk about बफर. सीधा बफर की बात करें. बताओ. बहुत बफर से घबराहट होती है इंसान को कि what is buffer, right? Every solution on earth is buffer. There is no solution which is not a buffer. ठीक है, somebody is there in between. Sir, can you hear me? Yeah, now I can hear you. Actually क्या है ना, ये जो है this is an omnidirectional mic. You need to hang some mic from the ceiling ताकि ये voice का issue ना हो. कोई नहीं, आप अभी रख दीजिए जैसे है वैसे we'll try to manage. क्या आपका क्वेश्चन हो तो सर से 1 by 1 पूछ सकते हैं. हाँ, तो कोई भी दिक्कत होगी तो माइक को you will have to take it in your hands and then you can ask your doubts. And you need to be, consciously a bit louder so that I don't have to ask again and again. ठीक है, तो बफर हो गया ना सबका? बफर आता है सबको? Yes, sir. Okay. So what's the formula of buffer? बफर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एक बता दो. ये पढ़ा नहीं है. पढ़ा नहीं? बफर नहीं, अच्छा बफर पढ़ा ही नहीं है. बफर पढ़ लिया पर उसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा. ऐसा कुछ नहीं पढ़ा. pH is equal to pKa plus log of salt by acid. ऐसा कुछ देखा है? हाँ सर पढ़ लिया. ऐसा कुछ देखा है? हाँ सर. Yes, sir. देखा है ना ऐसा कुछ? तो ये फॉर्मूला लगाना नहीं है बेसिकली. you'll not apply this formula. ठीक है, you'll not apply this formula. अगर ऐसा कुछ देखा है तो we'll go to the very very basic. चलो बेसिक से शुरू करते हैं. फर्स्ट वी टॉक अबाउट वाटर. ठीक है जी, पहले हम बात करते हैं पानी की. लेट्स टॉक अबाउट वाटर. ठीक है जी, तो पानी की बात करते हैं. तो पानी अगर जो है उसको हम देखें, सो इट ब्रेक्स अप इन फॉर्म ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस. ये तो क्लियर ही होगा सबको. क्लियर है बात?
Yes, sir. राइट, है ना। फिर पानी का के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, दैट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी कॉल एज Kw, द वैल्यू इज 10 to the power -14। ये बात क्लियर है सबको? Yes, Yes. sir. You already know this, right? So this value obviously is at 25 डिग्री। ये 25 डिग्री पे होती है सारी कहानी। तो हमारे देश में जितनी किताबें बनी है या जितनी भी केमिस्ट्री कहानियां हैं, they're all at 25 degrees, right? So we will talk about the temperature change, what happens via temperature change, but अभी के लिए value 10 to the -14 है, ठीक है? So this is the equilibrium constant. We call this as ionic product of water. Make sure you write everything, whatever you write here. ठीक है? तो आज का जो एम है that we feel this topic, right? It's a very very easy topic. और इतने सारे फॉर्मूले होते हैं कि समझ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएं। तो we are not going to apply any formula anywhere, right? It's not about applying formula, ठीक है? तो ये तो क्लियर है सबको, है ना, कि ionic product 10 - 14 होता है और ये H प्लस और OH माइनस की वैल्यूज आ गई हैं। फिर हम बोलते हैं जी पानी में से कुछ पार्टिकल्स टूटे, ऐसे टूटे सच दैट इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम में कितनी होगी जी, लेट्स से x मोलर। तो जितने पार्टिकल्स H प्लस के आएंगे उतने पार्टिकल्स किसके आएंगे जी, किसके आएंगे? Yes, sir. You need to speak up louder. Yes, sir. Yes. जितने पार्टिकल्स H प्लस के आएंगे उतने ही OH के आएंगे। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. राइट। सो इफ दिस इज x मोलर, दिस इज आल्सो x मोलर, ठीक है? और पानी के पार्टिकल्स टूटे हैं तो पानी के पार्टिकल्स का अमाउंट कम हो जाएगा, पर उसकी एक्टिविटी 1 होती है, ऐसा कुछ पढ़ा है? हैव यू स्टडीड द एक्टिविटीज 1? No, sir. No, sir. तो अभी इसको कभी सेपरेटली देख लेंगे। तो क्या कहानी है, पानी जो है उसका अमाउंट बढ़ेगा भी। भाई पानी में पानी बन रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, या टेस्ट ट्यूब से पानी कंज्यूम हो रहा है। अगर पानी के पार्टिकल्स टूट रहे हैं तो पानी कंज्यूम हो रहा है, इस बात की फीलिंग आ रही है? Yes, sir. Right? So we have to think like a layman. There is no formula we are going to use. You have to think like a layman, as a common man. और हम बिल्कुल देसी हिसाब लगाएंगे, देसी लॉजिक, कि पानी टूटेगा तो पानी का अमाउंट कम होगा, और पानी बढ़ेगा तो पानी का अमाउंट जो है बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेस्ट ट्यूब लेवल भी बढ़ेगा। उन सब चीजों से पानी की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 मानते हैं। ऐसे मान लो एक्टिविटी को मान लो 1, या ऐसे मान लो कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन को क्या मानते हैं? What do we assume it to be? 1. So A stands for activity. A stands for activity. ठीक है? Please make sure that you write everything. So we'll come back to this activity at some later point of time. अभी हम क्या मान रहे हैं? पानी चाहे कंज्यूम हो, चाहे पानी बने, चाहे जो मर्जी हो, पानी की वैल्यू 1 रहती है, खत्म। वो 1 क्यों रहती है, क्या कहानी, we'll understand that later on. Is it clear? Yes, sir. तो अब पानी टूटा, पानी ने H प्लस बनाए, पानी ने OH बनाए, सच दैट इन दोनों का मल्टीपल KW आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है कि KW क्या है? What is KW? We talk about KW. So KW is equilibrium constant, right? So KW की बात करें तो KW is what? Concentration of H plus ions, right, to the power 1. Why 1? 1 is the stoichiometric coefficient. यहाँ पे 1 is the stoichiometric coefficient. OH का भी stoichiometric coefficient क्या है? 1. So both are stoichiometric coefficients, right? So H plus to the power 1, then we talk about OH minus to the power 1. Again, 1 is the stoichiometric coefficient, right? Divided by concentration of H2O. That again will be raised to the power. So the stoichiometric coefficient is 1. So it will be raised to the power 1. 1. Right? And all these concentrations have to be at what? They have to be at equilibrium. तो इक्विलिब्रियम पे इन कॉन्सेंट्रेशंस का एक रेशियो की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? 10 to the power -14. 10 to the minus 14. Is this clear? Yes, sir. Right? तो that's how it is, है ना? अब हमने एक रट्टा क्या कहते हैं मार लिया है कि ये वाली वैल्यू तो हमेशा क्या है? 1 है। उसका लॉजिक अभी हमें नहीं पता, ठीक है? तो पता चल जाएगा बाद में। H2O की वैल्यू हमेशा 1 है, हमने मान लिया। तो essentially KW comes out to be, KW comes out to be straightforward concentration of H plus to the power 1, right? और या इसको भी हटाओ, आप 1 to the power 1 क्यों हटाएं? And concentration of OH minus to the power 1. That's it. And these values again have to be at what? At equilibrium. तो चाहे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, चाहे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, सारी बातें सेम है, right? This is just the syntax. You can write it any which way you write. तो तुम्हारी फीलिंग है, उसको लिखना है।
तो तुमने x प्लस इक्विलिब्रियम लिख दिया, OH माइनस इक्विलिब्रियम लिख दिया, अलग अलग लिख दिया, चाहे पूरे में ब्रैकेट लगा इक्विलिब्रियम लिख दिया, चाहे पूरे इस पूरे में ब्रैकेट लगा लिख दिया, जैसे मर्जी लिख दो, दैट डज नॉट मैटर। इंपॉर्टेंट इज की फीलिंग क्या है हमारी, कि ये वैल्यूज इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए। तो अब हमने क्या करा था, हमने करा था कि x प्लस की वैल्यू कितनी है, x, मोलैरिटी कितनी है, आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें मोलैरिटी पता है क्या होती है, राइट? नहीं पता तो अगेन विल डिस्कस इट इन सम अदर सेशन। ये मोलैरिटी तो क्लियर है ना, व्हाट इज मोलैरिटी? अरे फूट लो कुछ मुंह से, you need to speak up, your mic is not audible to me, your voice is not audible. Sir, can you repeat once? हाँ, मोलैरिटी क्लियर है बेटा? Yes, sir. हाँ, तो ये एक्स मोलर है, ये भी एक्स मोलर है, बोथ आर एक्स मोलर, ठीक है? तो हमने कहा कि इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स, इसकी वैल्यू कितनी, ये सब इक्विलिब्रियम पे, दिस इज ऑल कमिंग एट इक्विलिब्रियम। t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, चलो ऊपर लिख देते हैं। हमने माना ये बिल्कुल नहीं था, ये ऑब्वियसली इसके नीचे लानी चाहिए लाइन, पर कोई नहीं, डज नॉट मैटर। t इक्वल टू 0 पर जब हमने स्टार्ट करा, मान लेते एक्सप्रेस भी नहीं था और कोच भी नहीं था, फिर जब इक्विलिब्रियम आया t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, इसके एक्स पार्टिकल्स आए, इसके भी एक्स पार्टिकल्स ऐसे मान लेते हैं इन 1 लीटर, या सच दैट कॉन्सेंट्रेशन बिकम xx मोलर, ठीक है? इन बोथ केसेस पानी की एक्टिविटी यहां भी 1 थी और पानी की एक्टिविटी यहां पर भी क्या है, 1। तो इक्विलिब्रियम पे ये वाली वैल्यू आ गई x, so if I just go up, इक्विलिब्रियम पे we have got this value, so kw value is h plus की वैल्यू कितनी आई है, x, OH की वैल्यू कितनी आई है, x, and the multiple has to be equal to how much, 10 to minus 14, so we just solve this। ये कर रखा है आप लोगों ने बेटा जी, आप लोगों ने करा हुआ है, प्लीज स्पीक अप, यू नीड टू बी लाउडर। मेरे पास ना तो यस आई है ना नो आई है, कुछ तो बोलो। No, sir. ये नहीं करा हुआ है, अच्छा। pH 7 पड़ी हुई है, न्यूट्रल पानी की pH 7 होती है, पड़ा हुआ है। सर रिपीट कर दो। न्यूट्रल पानी, अच्छा, इज देयर अ लैग? सर आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। मेरी बात समझ नहीं, मैं कह रहा हूं मेरी बात में जो मैं बोल रहा हूं उसमें कोई लैग तो नहीं है बेटा? ऐसे नहीं नहीं लैग तो नहीं है ना? ना। अच्छा ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि पानी की pH के बारे में बात करी हुई है, Yes, sir. तो न्यूट्रल पानी की pH 7 होती है, ये पढ़ा हुआ है? Yes, sir. हाँ, तो उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। अभी तक ये समझ आ गया क्या करा है हमने? Yes, sir. Yes, sir. x is 10 to minus 7 and x is 10 to minus 7 such that the multiple becomes equal to what? 10 to power minus 14. 10 to minus 14, right? ये आ गया। और x क्या है? We represent x as it is nothing but concentration of H plus ions at equilibrium. This is also concentration of OH minus ions at what? Equilibrium. Equilibrium. EQ लगा दिया हमने. That's how we have said. तो न्यूट्रल पानी में अगर सिर्फ पानी पड़ा हुआ है, न्यूट्रल पानी बोल लो या सिर्फ पानी पड़ा हुआ है, तो इक्विलिब्रियम पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 to minus 7 होती है, OH की भी 10 to minus 7 होती है, such that the ionic product becomes equal to how much? 10 to power minus 14. Yes, 10 to the minus 14. That's how it is, right? So this is H plus aqueous. AQ stands for aqueous. OH minus aqueous. AQ stands for aqueous, and the equilibrium constant is 10 to the minus 14. Right again. तो हमने कहा जी T equal to 0 पर ये तो जो मर्जी लिखेंगे नहीं, ये जितना मर्जी था, जो मर्जी वैल्यू हो इसकी, हम इसकी एक्टिविटी को मानेंगे 1। तो यहाँ पर इसका अमाउंट जो है इट इज इमेटेरियल फॉर अस एंड वी अंडरस्टैंड द लॉजिक लेटर ऑन, है ना? ये वाली वैल्यू बिल्कुल नहीं थी, ये वाली वैल्यू बिल्कुल नहीं थी। कब? जब हमने एक्सपेरिमेंट क्या करा, स्टार्ट देखना शुरू करा, फिर थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आया। जब इक्विलिब्रियम आ गया T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, तो ये थोड़ा कम हुआ होगा, बट इट डज नॉट मैटर, इसकी एक्टिविटी हमेशा अभी भी क्या है, इट स्टिल 1, ठीक है? और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, हमने देखा जी ये वाली वैल्यू जितनी आएगी उतनी ये आएगी, तो ये वाली वैल्यू है 10 to the minus 7 मोलर, और ये वाली वैल्यू भी कितनी है, 10 to the minus 7 मोलर, 7. right? Such that the multiple becomes equal to what? 10 to minus 14, 14. right? That's how it is. Now we don't want to always keep on speaking 10 to the minus 14, we don't want to say 10 to minus 7, 10 to minus 7, we don't want to keep on speaking that again and again. हम नहीं चाहते बार बार 10 to minus 7 बोले, 10 to minus 7 बोले, right? So we just want to deal in this value,
ठीक है, कि गलती से लेट से अगर हम बात करें कि ये वाली वैल्यू गलती से इक्विलिब्रियम पे 10 टू पावर -6 हो गई, ये वैल्यू 10 टू पावर -6 हो गई, लेट कर रहे हैं, लेट एट सम टाइम, राइट, एट सम मोमेंट, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 10 to power -6. 10 टू -6 मोलर हो गई ये वाली वैल्यू। तो और ये मान रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, मान रहे हैं कि ये वाली वैल्यू किस पे है? Equilibrium. इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे इसका और इसका मल्टीपल 10 टू -14 होना चाहिए, समझ आ गया हमें। तो अगर ये 10 टू -6 होगा तो ये कितना होगा? 10 to -8, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, this will be 10 to -8 मोलर। Again this value will be at what? Equilibrium. That's it. जी ये वाली वैल्यू 10 to -5 हो गई, तब तो समझ ही आ रहा है ये कितना होगा? 10 to -9 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. राइट, है ना? तो अब हमें समझ आ रहा है कि we will be playing with 10 to -something। हमारा एम होगा to play with 10 to the power -something। We will be playing with these values 7, 6, 5, 7, 8, 9 -14 या 14 के साथ प्ले करेंगे। तो हमने एक टर्म डिवाइस करा, we talked about a mathematical term called as ph, या उससे पहले we'll talk about a function, है ना? हमने बात करी एक मैथमेटिकल फंक्शन की p of x। हमने p of x डिफाइन करा नेगेटिव log of x, that's how we defined it। लॉगरिथम्स हो गया आप लोगों का? लॉगरिथम्स हुआ है? Yes, sir. Sir, आज मतलब सिर्फ बेसिक समझाया था। बेसिक समझाया था। लॉग इसका बेसिक तो आता है, हाँ सर। बेसिक आता है ना? बेसिक नहीं करेंगे, we have to do everything from the very very basic, ठीक है? तो नेगेटिव लॉग ऑफ x है, तो अभी करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन, इफ आई से p of h, p of concentration of h plus, राइट? तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन आती है, ये बात क्लियर है? Yes, sir. स्क्वायर ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल होता है, ये बात क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. ठीक है, तो P ऑफ जो भी यहां पे ड्राइंग है, व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस सिंपली इंप्लाइज P ऑफ सम ड्राइंग इज व्हाट? नेगेटिव लॉग ऑफ दैट ड्राइंग। ये तो करना है, Yes, sir. right? So the drawing right now is what? Concentration of H plus, so that will become equal to what? Negative log of concentration of। Yes. तुम्हारा मन कर रहा है तुम ब्रैकेट भी लगा दो, नहीं भी कर रहा तो भी चलेगा, वो ब्रैकेट के अंदर ही है, तो नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, राइट? दैट्स हाउ इट इज। नाउ इफ आई से द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू जो है वो है 10 to the power -7, कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 to -7। तो शायद ये पढ़ा हो, recall that log of a to the power b, right? So I will get to the mathematical feeling of this, log की feeling अभी लेंगे, पर अभी मान लेते हैं फॉर्मूला, अगर बेसिक से करा है तो फॉर्मूला याद करे होंगे। आई डोंट वांट टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला, बट अभी के लिए कर रहे हैं। तो log of a to the power b में ये करा है कि ये पावर यहां पहुंच जाती है, Yes, yes. ये करा है? Yes, sir. तो दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट? b into log of a, राइट? दैट्स हाउ इट इज, राइट? तो अभी के लिए हम याद ही कर रहे हैं, शायद याद ही करा होगा, और फिर इसको फील कर लेंगे, मतलब विल ट्राई टू फील व्हाट एग्जैक्टली इज लॉग, ठीक है? तो यहां पर पहुंचते हैं, लेट्स कम बैक टू दिस, ठीक है? तो 10 की पावर क्या है? -7. -7, राइट? तो 10 की पावर इज -7, दैट्स हाउ इट इज। तो ये हो गया तुम्हारा a, दिस ड्राइंग इज a एंड दिस ड्राइंग इज b, राइट? सो ऑब्वियसली दिस पावर इज गोइंग टू गो डाउन, ये यहां पहुंच जाएगी। ये बात समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. तो ये हो गया जी -1 मल्टीप्लाइड बाय -7, दैट्स हाउ इट इज, इनटू व्हाट? लॉग ऑफ 10, 10. ठीक है? और लॉग 10 क्या होता है? ये करा है? One. क्या बोला? लॉग 10 One. 1, या सो लॉग 10 इज 1, ठीक है जी। लॉग 10 1 क्यों होता है ये भी फील कर लेंगे, पर अभी के लिए लॉग 10 की दिस वैल्यू इज 1, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 1, सो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट? 7. ना? और ये बार बार P ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस ना लिखना पड़े, तो इस सिंबल को हमने सिंपली क्या बोल दिया? pH। समझ आ रही है बात? इस Yes. P ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस को क्या बोल दिया हमने? pH। क्लियर है? सो इफ आई जस्ट रिपीट एवरीथिंग, सो जी अगर कोई लिखता है P ऑफ H, so what is trying to say is
if somebody writes P of H, he is trying to say P of concentration of X plus. H plus. That is what he is trying to say, right? And that value is negative log of concentration of H plus. ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी, Yes, है sir. ना? और अगर हम बोलते हैं जी कि this value is let's say negative log of concentration of H plus is 10 to the power minus 8, तो हमें समझ आ रहा है कि 10 to minus 8 का जो ये पावर है ये यहाँ नीचे आने वाली है, फिर माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, और log टर्म क्या हो जाएगा? 8. log टर्म 1 हो जाएगा, and yes the answer will become equal to 8. ये क्लियर है ना बात सबको? ठीक है, so we make a table. So I don't want to talk about a value which is pH. Similarly we can talk about POH also. यहीं पे खत्म करते हैं. We can talk about POH also. कि somebody says POH बताओ, है ना? तो POH क्या है? वो 10 to the power minus something में पावर बता दो, और जो पावर है वो वैल्यू बता दो. POH है जी, अगर ये POH is this is concentration of OH minus होगा, and let's say चलो ये एग्जांपल लेते हैं, तो this is negative log of concentration of OH minus, that's how it is, right? And if H plus is 10 to minus 8, what's the value of OH minus? minus 6. 10 to minus 6. Why? Because the multiple has to be 10 to minus 14. 14. So this value has to be minus log of 10 to the power minus 6, and then we know this answer has to be equal to what? 6. 6. ठीक है, तो टेबल में डालते जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे. Let's make a table, right? है ना? तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि we can talk about concentration of H plus, right? And then we can talk about concentration of OH minus, and then we talk about pH, and we can talk about POH. That's how it is, right? So if concentration of H plus is, let's say 10 to the power minus 1, तो OH कितना होगा? Minus 13. 10 to minus 13, ये तो समझ ही आ रहा है. तो ये 10 to the minus 2 होगा, तो ये 10 to the minus क्या कहते हैं 12 हो जाएगा. करते करते करते, राइट, तो हम पहुंचेंगे 10 to the power minus 6 पे. We'll reach at 10 to the power minus 6. तो कितना हो जाएगा? 10 to the minus 8 हो जाएगा. That's how it is. Then we'll reach the neutral water, which is 10 to the power minus 7. तो ये आंसर कितना है? 10 to the minus 7. right? है ना? And then we talk about nature of water. We can write here nature of water. ठीक है जी, कहानी चल रही है. तो 10 to the 7, 10 to the 7 जो दो कहानी है, तो पानी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल. ये पीने लायक पानी होगा if it is pure. Neutral does not mean any neutral water you can drink. It also has to be pure, है ना? तो उसमें impurities नहीं है. अगर impurities नहीं है तो ये पीने लायक पानी होगा. ठीक है, it is neutral. ठीक है जी. तो अब pH की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 7. pOH की वैल्यू भी क्या है? 7. ये बात क्लियर है सबको? क्लियर है बात सबको? Yes, sir. अब H प्लस की जो वैल्यू है वो 10 to minus 6 है अगर, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर 10 to minus 7 या 10 to minus 7 ज्यादा है? 10 to minus 6 ज्यादा वैल्यू, इट्स अ हायर वैल्यू एज कम्पेयर 10 to minus 7. ये बात क्लियर है? तो पानी में अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो उस पानी को हम बोलते हैं एसिडिक, राइट? एसिडिटी इज डिफाइंड बाय H प्लस आयंस. तो इसमें भी 10 to minus 2 अगर H प्लस आयंस है तो क्या वो 10 to minus 7 से ज्यादा वैल्यू है? रिपीट कर देना. 10 to minus 2 जो वैल्यू है 0.01, is this a higher value as compared to 0.60 और एक कौन सी वैल्यू ज्यादा है? सर ऊपर ऊपर वाली. So this value is higher. तो अगर 10 to minus 2 अगर ज्यादा वैल्यू है, right, if this is a higher value, तो H प्लस आयन ज्यादा है, बात क्लियर है? Yes, sir. राइट. तो इस पूरी कहानी को we call as acidic water. ये बस में आ रही है. So we say this water is what? एसिडिक. Acidic. ये बात समझ आ रही है? यस सर. Yes, समझ आ रही sir. है? Is this clear? और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज H प्लस आयन यहाँ पर क्या है? 10 to minus 7 से क्या है? ज्यादा.
right? Why? Because concentration of H plus ion is greater than 10 to minus 7. ये बात समझ आ रही है? Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. If we talk about the pH values, तो जब 10 to minus 1 है तो pH की वैल्यू 1 है, right? जब 10 to minus 2 है तो pH की वैल्यू क्या है? 2 है. H plus की वैल्यूज करते 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 जब H plus का 10 to minus 6 है तो pH की वैल्यू 6 है, right? That's what it is. तो pH से कोई मतलब नहीं, एक्चुअली हमें इससे मतलब है. तो 10 to minus 7 बार बार ना बोलना पड़े, 10 to minus something बार बार ना बोलना पड़े, तो हमने वैल्यूज बना दी. We have talked about these values. That's how it is. ठीक है. pH की वैल्यू ये 10 to minus 13 है तो pH कितना है? ये अगर 10 to the minus 13 है तो pOH कितना है? 13, राइट. सिमिलरली ये 12 हो जाएगा, करते 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 ये वैल्यू 8 हो जाएगी. ठीक है जी. तो pOH को हम नहीं सोचेंगे, हमें जब भी pOH सोचना है तो हम निकाल ही लेंगे ना. अगर हमारे पास pH पता है तो हमें पता है अगर pH की वैल्यू 2 है तो H प्लस कितना है? pH अगर 2 है तो H प्लस कितना है? 10 to the power minus 2. 10 to the power minus 2. तो अगर 10 to the power minus 2 है H प्लस तो OH कितना होगा? 10 to the power minus 10 to minus 2 अगर H प्लस है तो OH कितना होगा? 10 to minus minus 12 होगा. तो OH आ गया 10 to minus 12 तो POH आ गया. POH कितना होगा? 12 होगा. ये रट्टा मत मारना. हाँ जी समझ आ रहा है कि सम 14 होगा. The sum has to be 14. ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. राइट. सो यू विल नॉट रेक्टिफाई दिस कि दिख रहा है जी, ये तो दिख ही रहा है कि इन दोनों का सम 14 है ना, भाड़ में 14. विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक कि H प्लस इज 10 to minus 2, क्योंकि ये 2 है तो H प्लस 10 to minus 2. तो OH कितना होगा? OH की एक्चुअल वैल्यू 10 to minus 12. तो POH कितना होगा? 12. H प्लस अगर ये 6 है, pH 6 है तो H प्लस 10 to minus 6. तो OH कितना होगा? 10 to minus 8 तो POH 8. और जी ये ऐसा 10 to minus 8 क्यों होगा? बिकॉज द मल्टीपल हैज टू बी इक्वल टू व्हाट? Multiple of these two ions has to be equal to what? Multiple of these two ions has to be equal to what? So 10 to power minus 14. 10 to minus 14. ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Right? You might find such kind of formulae in books and you will not apply any formula, right? कि जी ये हमने यहाँ पे लिख दिया pH plus POH it is equal to what? 14. है ना, बड़ा सा बक्सा बना दिया है ना, फॉर्मूला नंबर 575. ये ऐसे फॉर्मूले यूज नहीं करोगे तुम बिल्कुल भी. You will do it from the very very basic. Is this clear? Yes, sir. तो we talked about acidic water. जल्दी से खत्म करते हैं. We can talk about basic water also. कि जी ये वाली वैल्यू अब 10 to the power minus 8 हो गई तो H प्लस का अमाउंट कम हो गया और राइट H प्लस का अमाउंट और कम हो गया है. ठीक है जी. तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? -6. अब OH बढ़ गया सिस्टम में. OH ज्यादा हो गया. ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये सिस्टम बेसिक है. ये 10 to the power minus अगर 5 हो गया तो OH और बढ़ गया तो ये 10 to minus 9 हो जाएगा. That's how it is. ठीक है. तो यहां पर ये पक्के ऐसे ये कौन सी कहानी है जी? दिस इज बेसिक वाटर. Why is this basic water? Because H plus का अमाउंट अब 10 to the power minus 7 से क्या है? कम है. H plus 10 to the power 7 से ज्यादा होता तो एसिडिक, कम है तो बेसिक. करते 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 वो जितनी मर्जी वैल्यूज होती हो सकती है. 10 to minus 1 हो गया, डज नॉट मैटर. तो ये 10 to minus 13 है. ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. राइट. दैट्स व्हाट इट इज. तो ये pH की वैल्यू कर लेते हैं. ये 8 है तो ये 6 हो गया. ये अगर 10 to minus 9 है तो ये 9 हो गया. ये 5 हो गया. करते करते ये 1 हो गया और ये करते करते कितना हो गया? 13 हो गया. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी. तो ये हमारी बात होगी. अब आगे चलते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो ये टेबल बन जाती है किताबों में. इफ यू वुड हैव रेड सम बुक्स एनसीईआरटी वगैरह में भी एक टेबल सी बन जाती है ऐसे. ये ऐसे बना दिया, नंबर लाइन सी बना दी. यहाँ पे pH 7 बोल दिया है ना. यहाँ पे ये बोल दिया 8, 9, 10 एंड सो ऑन. यहाँ पे बोल दिया 6, 5, 4 एंड सो ऑन. दैट्स व्हाट इज. तो यहाँ बात करें pH 7 पे पानी क्या है? Neutral. न्यूट्रल. लास्ट के टेबल में वो इन्वर्स ही होना चाहिए था. कहाँ पर? लास्ट रो में टेबल.
लास्ट यहाँ पर हाँ क्या कह रहे हो, क्या होना चाहिए था? ये -13 होना चाहिए था और वो -, 10 to minus में क्या होना चाहिए था? ये -13 होना चाहिए था और राइट में Yeah, you're right, you're right, you're right. This should be -13. Obviously, तो एसिडिक बना दिया हमने, बिल्कुल ठीक बात है. This should be 10 to minus 13, right? And then this should be 10 to minus 1. You're right. बिल्कुल ठीक बात है. ठीक है, तो ये हमने यहाँ भी उल्टा लिख दिया है. That's how it is. ठीक है जी. तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. So we're talking about the stuff here. तो ये pH 7 पे पानी क्या है? Neutral. न्यूट्रल है. इट इज न्यूट्रल एट 7, है ना. और अगर हमारी pH की वैल्यू कम हो गई तो H प्लस की वैल्यू 10⁻6 है यहाँ पर. ये एकदम समझ आना चाहिए. ये दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट pH. दिस इज pH, द pH वैल्यूज. तो 6 है अगर pH, तो H प्लस कितना है? 10⁻6. ये H प्लस की वैल्यूज लिख रहा हूं मैं. ये 10⁻5. तो ज्यादा वैल्यूज है H प्लस की, कम वैल्यूज है? ज्यादा. तो पक्के से इस पानी में H प्लस आयन ज्यादा है. तो यहां पर दिस Yes. वाटर इज व्हाट? एसिडिक एसिडिक. और वी कैन से एसिडिटी इंक्रीजेस, राइट. यहां पे H प्लस कितना हो गया? कम हो गया, 10 to the minus 8. और कम हो गया, H प्लस कम हो गया तो OH माइनस बढ़ गया. दैट इंप्लाइज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होनी चाहिए. वो 10 to the minus 6 हो गई, फिर 10 to the power minus 5 हो गई. ये बढ़ती जा रही है वैल्यू. तो OH माइनस बढ़ता जा रहा है. तो यहां पर क्या हो रहा है? बेसिसिटी इंक्रीजेस. दैट्स हाउ इट इज. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है. तो हमारा ये पार्ट हो गया, हमने पानी की बातें कर ली. और ये सारी पानी की बात हमने 25 डिग्री पढ़ी है. We talked about this whole thing at 25 degrees. Is it clear? Yes, sir. And we yet don't know कि पानी को आप खाए जा रहे हो, पर फिर भी पानी का अमाउंट आप चेंज नहीं कर रहे. याद आ रहा है? यहां लिखा था हमने, गेट रिटन हेयर, ये कि पानी का अमाउंट हम चेंज नहीं कर रहे. इसको हम कंज्यूम कर रहे हैं या इसको प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो इसकी एक्टिविटी को क्या बोल रहे हैं? 1. इसका रीजन नहीं पता अभी हमें. तो एट एवरी पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पता है और हमें क्या नहीं पता. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Right. Now let's talk about acidity of H plus. Right? Acidity of H, pH in acidic solutions. pH of strong acids. Right? So we're talking about pH in solutions with strong acids. ठीक है जी. That's all it is. तो strong acid की बात करें, so what exactly is a example लेते हैं strong acid, right? Example लेते हैं HCl. It is one of the examples, है ना. HI, है ना. अभी के लिए तुम्हारे लेवल पे you can also talk about H2SO4, etc. ठीक है. तो H2SO4 अभी सोचेंगे नहीं. Let's not think about H2SO4. Let's just talk about HCl right now. So when I say HCl is strong, what do we mean by that? कि HCl strong का मतलब है जी HCl aqueous. Aqueous का मतलब क्या होता है? This stands for aqueous. Aqueous. Aqueous means, what does it mean? Solution in water. Please make sure that you write everything. Right? It is very important. ना वो लिखते लिखते एकदम से कुछ समझ भी आ रहा होगा तो लगेगा उनकी नहीं लिखते. लिखना बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जो नहीं समझ आएगा, फिर लिखने का मन नहीं करेगा. राइट. तो यू विल टेक बैक, टेक होम द नोट्स व्हिच यू हैव मेड. बार बार वीडियो में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, बट उसका फायदा नहीं है. बार बार यूट्यूब वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, उससे पढ़ाई नहीं होती है. तो अभी जो कर रहे हो उसको ऐसे करो कि दोबारा ना करना पड़े. तो HCl क्या है? एक्वस. और ये स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि पानी में जाता है और जाते ही टूट जाता है. राइट. ऐसा क्यों होता है? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समटाइम लेटर ऑन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. राइट. तो ये पानी में जाता है और जाते क्या जाता है? टूट जाता है. अगर ऐसा हो रहा है तो वी कॉल दैट एसिड एज व्हाट? स्ट्रॉन्ग. ठीक है. तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं.
मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, या आई कैन रब दिस ऑफ, या चलो दोबारा लिख देते हैं. सो वी हैव HCl aqueous, it gives H plus aqueous plus what? OH minus aqueous, right? तो अब मैं वैसे लिखता हूँ कि T equal to 0 पे, at T equal to 0, let's say this value was, कुछ भी मान लेते हैं, this value was कुछ ले लो X मोलर या Y मोलर या P मोलर, P भी यूज करते हैं ना सिंबल, Q मोलर ले लेते हैं, चलो Q मोलर, ठीक है, या Q मोलर भी छोड़ो, कोई वैल्यू ले लेते हैं ना, दिस वैल्यू वाज लेट्स से 0.1 मोलर, राइट? दिस वैल्यू वाज 0.1 मोलर, और ये बिल्कुल नहीं था. अच्छा, यहां पे पानी वाली बात नहीं बोली है, पानी नहीं है, ऐसी एक्टिविटी हमेशा 1, इट इज नॉट पानी, वो सिर्फ पानी के लिए है. और किस किस के लिए वो देखेंगे हम, पर वो एक्टिविटी 1 वाली कहानी किसके लिए सिर्फ, इट इज फॉर वाटर ओनली. इज इट क्लियर? आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोगों की, The voice is not clear. बोलो दोबारा बोलो. So the voice is not clear. My voice is not clear, or my voice is not clear to you? Yes, sir. अब आ रही है आवाज, आ रही है अब? Yes, sir. Yes, sir. अब आ रही है आवाज? Yes, हाँ. sir. अब ठीक आ रही है आवाज? Yes, sir. हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि वो जो कहानी थी कि एक्टिविटी 1 है, वो किसके लिए थी? H2O. ओनली H2O. और कहां होती है, विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन. उसके अलावा और कहीं नहीं है अभी के लिए. ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, ये वाली वैल्यू 0.1 अगर है और यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग का मतलब पानी में जाते ही, मैं लिख रहा हूं T equal to 0 प्लस, मतलब एक फोटो खींची हमने ये डालने से जस्ट पहले, ये डालते हुए HCl जैसी टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब है यहां पर हमारे पास, उस टेस्ट ट्यूब में जैसे ही HCl डाला, यहां पे HCl के दाने आ गए ये वाले, जैसे ही डाला वैसे फोटो खींच ली, वैसी फोटो खींची तो HCl में ये सॉल्यूशन के अंदर HCl की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? ज्यादा. 0.1 मोलर. ठीक है, और ये दोनों बिल्कुल नहीं थे. ये बात समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना? और जैसे ही डाला वैसे ही ये टूट गया. T equal to 0 प्लस का मतलब क्या है? डालते ही ये क्या हो गया? टूट गया. टूट गया, पूरा टूट गया, पूरा खत्म हो गया. कि इसके 10 पार्टिकल थे तो ये 10-10 बन जाएंगे, इसके 20 पार्टिकल थे तो दोनों कितने बन जाएंगे? 20-20. अब अगर इसके 0.1 मोल्स हैं पर लीटर, ये क्लियर है? मोलर मींस मोल्स पर लीटर. ये बात क्लियर है? Yes, sir. मोलैरिटी मींस मोल्स पर लीटर. तो इसके 0.1 दाने हैं, ऐसे मान लेते हैं मोल इज दाना फॉर अस, तो 0.1 दाने हैं पर लीटर, तो पूरे टूट जाएंगे पर लीटर. तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1. 0.1 मोलर या 0.1 मोल्स पर लीटर लिख लो, दोनों लिख लो, जो मर्जी लिख लो. यू नीड टू फील इट. 0.1 मोल्स पर लीटर, दैट्स हाउ इट इज. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये भी 0.1, ये भी 0.1, दैट्स हाउ इट इज. तो ये पूरा टूट जाता है, दैट इज द फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग. क्लियर है बात सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, है ना? H2SO4 कैसे टूटता है वो भी कभी देख लेंगे, अभी नहीं सोचना. अवॉइड थिंकिंग अबाउट दिस. ठीक है, H2SO4 को डील कर लेंगे. इट्स अ पॉलीप्रोटिक एसिड, पता नहीं क्या बोले जा रहे हो आप, तो वी विल टॉक अबाउट. सो अवॉइड थिंकिंग, है ना? तो टू बी डिस्कस लेटर, टू बी डन लेटर. ठीक है, विल अंडरस्टैंड दैट लेटर ऑन. ठीक है जी, तो H2SO4 होता है, HI बिल्कुल सेम है, पानी में जाएगा पूरा पूरा हो जाएगा, पानी में जाएगा और पूरा टूट जाएगा. दैट्स हाउ इट इज, राइट? तो आगे चलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन वाइज करते हैं. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं. फाइंड पीएच ऑफ, एक्चुअली ये क्वेश्चन हो गया और उसका सब पार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन ए लिख लेते हैं, लेबल ए, है ना? ए पार्ट, फाइंड पीएच ऑफ, है ना, फॉलोइंग, बस पीएच ऑफ लिख दो, फॉलोइंग वगैरह क्या 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 करोगे लिख के, राइट? पीएच ऑफ, लेट्स से. सो फर्स्ट क्वेश्चन, 0.1 मोलर HCl. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द पीएच ऑफ 0.1 मोलर HCl. तो जब ये बोला जा रहा है कि फाइंड पीएच ऑफ,
तो मन में एक क्वेश्चन चलना चाहिए बिल्कुल देसी भाषा में कि इसका मतलब पीएच का मतलब क्या निकालना है, pH plus कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus. H प्लस, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है कब, एट इक्विलिब्रियम। ये यहां स्पेसिफाई नहीं करा, ये स्पेसिफाई नहीं करा। पीएच तो किसी इंस्टेंट पे, जिस भी इंस्टेंट पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे उस इंस्टेंट में पीएच आ जाएगी। और बिना स्पेसिफाई करे, स्पेसिफाई नहीं भी करा तो इसका ऑटोमेटिक मतलब क्या है कि ये H प्लस की वैल्यू कब निकालनी है, equilibrium. एट इक्विलिब्रियम। यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू एट इक्विलिब्रियम। Equilibrium. समझ आ रही है बात? Yes, sir. Yes. राइट, सो यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू एट इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो 0.1 मोलर HCl की वैल्यू निकालनी है। 0.1 मोलर क्या पड़ा हुआ है, H प्लस HCl पड़ा हुआ है। और ये मोलर का मतलब क्या है, द सॉल्यूशन इज इन व्हाट, this implies H plus HCl is present in what, Water. in water, it is present in water। तो हम शुरू हो जाते हैं, है ना, हम सीधा शुरू हो जाते हैं। क्या जी, ये शुरू हो जाते हैं कि जी HCl है, ओहो, तो HCl तो पानी में जाएगा। और अभी आपने रटवाया है, क्या रट्टा लगाया हमने कि पानी में जाएगा और वो क्या हो जाएगा, H plus. पूरा पूरा टूट जाएगा. राइट। सो दिस वैल्यू वाज 0.1 मोलर इन द बिगिनिंग, और ये दोनों नहीं थे, तो थोड़ी देर बाद ये पूरा पूरा खत्म, और ये कितना हो जाएगा 0.1 मोलर, और ये कितना हो जाएगा 0.1 मोलर। 0.1 molar. राइट, दैट्स व्हाट वी आर विजुअलाइजिंग। यानी हम कह रहे हैं जी टेस्ट ट्यूब में पहले 0.1 मोलर क्या था, HCl, HCl. और थोड़ी देर बाद जी जैसे हमने टेस्ट ट्यूब को देखा तो टेस्ट ट्यूब में H प्लस आयन अलग मंडरा रहे हैं, such that their concentration is what, 0.1 molar, and concentration of Cl minus is also how much, 0.1 molar. 0.1 molar। ये बोल रहे हैं, क्लियर है? Yes, this sir. picture is at T equal to 0 and this picture is at T equal to 0 plus बोल दिया जस्ट डालते ही। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. So what's the concentration of H plus ion we get, 0.1 molar। 0.1 मोलर का मतलब हो गया 10 to the power minus 1 मोलर। क्लियर है? Yes, sir. तो 10 to the power minus 1 आ गया। So what does that imply? What's the value of pH? 1. 1। क्लियर है? So don't worry about the unit, यहाँ पे यूनिट है, वो यूनिट we take care of, so don't worry। तो ये 10 to minus 1 है, तो pH की वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई। समझ आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है, तो ये आंसर है, ये लोग बक्सा बना देते हैं, रटवा देते हैं, खत्म होगी बात। ठीक है, अब आंसर ठीक आया है, पर ये ऐसे सोचना गलत है। आंसर ठीक आया है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे तो आंसर यही आएगा दोबारा, राइट, बट दैट इज हाउ इट इज डन इन बुक्स। है ना, वो प्रदीप, दिनेश, महेश, जो मर्जी किताब पढ़ लो, है ना, ऐसे लिख देंगे जी, ओहो HCl कितना, 0.1 मोलर, तो H प्लस कितना आएगा, इससे H प्लस कितना आएगा, 0.1 molar. 0.1 मोलर आएगा। तो जब H प्लस 0.1 मोलर आएगा तो पीएच की वैल्यू क्या ले लेना सीधा 1। 1. आगे बढ़ जाओ। Now, this is not correct। ठीक है, we'll try to understand why this is not correct, है ना, we'll try to understand that। let's try and talk about। so 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे, 4 5 2 मैं करा दूंगा, 3 फिर 5वां चौथा, 5 वाले लेते हैं। so most likely that will be question number 5। फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं, राइट। फर्स्ट पार्ट विल बी 10 to the power minus 7 molar HCl। ठीक है जी, ठीक है, सेम ड्रामा करते हैं। तो जी पहले H प्लस के HCl कितना दिया था, हाउ मच वाज HCl, 0.1। अब कितना है HCl, 10 to the power minus 7. 10 to the power minus 7 मोलर। सो HCl is 10 to minus 7 मोलर। तो शुरू हो जाते हैं। सो वी से जी सेम ड्रामा कि जी HCl है जी, वो पानी में जाएगा, एक्वस पानी में जाएगा, पूरा पूरा टूट जाएगा। अच्छा देखो, ऊपर के जितने भी डायग्राम्स हैं मैंने वहां पर फॉरवर्ड एरो बनाया फॉर HCl। तो फॉरवर्ड एरो तो होता नहीं, केमिकल इलेमेंट तो हो ही गया, आयनिक हो गया तो केमिकल भी हो चुका है ना। तो कोई भी रिएक्शन में पूरा पूरा फॉरवर्ड नहीं होता। वो कहने का मतलब ये कि ये भर भर के फॉरवर्ड जाता है और बैकवर्ड के नाम पे धब्बा है, राइट, कि बैकवर्ड बहुत कम जाता है और फॉरवर्ड क्या होता है, बहुत ज्यादा जाता है, राइट, है ना। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ये 0.1 मोलर है, तो ये पूरा पूरा टूट गया, तो ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं बचा, बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ HCl फ्री बचा होगा, राइट, बट उसका इतना कम है कि हमने कुछ नहीं करा, हमने छोड़ दिया इसको, हमने कहा है नहीं है।
समझ आ रही है बात? Yes, sir. क्लियर है कि देयर इज इक्विलिब्रियम साइन हियर आल्सो, देयर इज इक्विलिब्रियम साइन हियर आल्सो, ठीक है जी, देयर इज इक्विलिब्रियम साइन हियर आल्सो, अच्छा ऑर्डर, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब HCl कितना पड़ा हुआ है? 10⁻7। तुमने कहा जी T इक्वल टू 0 पर, T इक्वल टू 0 पर ये है 10⁻⁻7 मोलर, और ये नहीं है, ये नहीं है, मिलना चालू कर दिया। तो T इक्वल टू 0 प्लस पे ही नहीं, एकदम से 0 प्लस पे इक्विलिब्रियम में आता है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि एकदम से टूट जाता है, इक्विलिब्रियम में आता है इसका, ये बिल्कुल ही नहीं होगा, ऑलमोस्ट 0, राइट? सो दिस वैल्यू विल बी ऑलमोस्ट 0, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, इट इज ऑलमोस्ट 0, है ना? और ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁻7 मोलर, 10⁻⁻7 मोलर। Is this clear? Yes, sir. So what's the concentration of H plus ion which we have got? 10⁻�7 molar. Yes, sir. 10⁻7 molar, है ना जी? So that implies what's the value of pH? 7. 7. Happy birthday. pH is 7. pH 7 मतलब पानी क्या है? Neutral. न्यूट्रल। You can drink it. पानी में गेरा तुमने एसिड, पानी में क्या गिरा? Acid. एसिड, और खुले आप झूठ बोल रहे हो कि पानी में क्या बोल रहे हो? न्यूट्रल, कि पी जाओ। तो ये मेरे दोस्त को पिलाएंगे, सबसे प्रिय दोस्त को, ये क्लियर है? Yes, Is sir. this water neutral? Is this water neutral? If you have put acid in water, तो is this neutral? Yes, sir. It can't be neutral. कैसी बातें कर रहे हो? It can't be neutral. You have to think like a layman. You have to think like a layman. Right? कुछ भी रटना नहीं है बेसिकली कि जी ये न्यूट्रल कैसे हो सकता है, ये बात ठीक नहीं लग रही, ये बात ठीक नहीं लग रही, इट कांट बी न्यूट्रल। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. बस समझ आ रही है। तो प्रॉब्लम क्या थी इस मेथड में, और जो हमने ऊपर आंसर निकाला जो बाद में भी सही आएगा, इसमें और इसमें गड़बड़ क्या थी कि यू हैव नॉट विजुअलाइज द टेस्ट ट्यूब लाइक अ लेमैन, है ना? तुमने बिल्कुल एक नॉर्मल कॉमन इंसान के साथ, इंसान के हिसाब से काम नहीं करा, है ना? तुमने वो बिल्कुल टेक्निकल बातें करना शुरू कर दिया और समझा ही नहीं। यू डिड नॉट विजुअलाइज द टेस्ट ट्यूब। व्हेन यू टॉक अबाउट द टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले क्या पड़ा हुआ है? HCl. पानी पड़ा हुआ है। HCl तो बाद में आया, सबसे पहले तो उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, Yes, sir. राइट? यू टू विजुअलाइज इट, कैसा होगा जी टेस्ट ट्यूब में डूब गए खुद से, है ना? और उसमें क्या डाला? HCl। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो this is, let's say, before the start of the experiment, we can say this is at T equal to 0 minus, ऐसे बोल दिया। 0 minus का मतलब क्या है कि हमारे एक्सपेरिमेंट तब स्टार्ट हो रहा है जब ये यहां पहुंच गया, तो this is at T equal to 0 minus। T equal to 0 पे क्या होगा? टेस्ट ट्यूब की पिक्चर क्या है कि T equal to 0 पर टेस्ट ट्यूब के अंदर जी पानी के पार्टिकल्स हैं, so you have H2O, let me not make it every time now, right? So we have H2O, है ना? ये थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं, let's make it a bit larger। So this is the test tube, ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उसमें एक तो H2O पड़ा हुआ है, Yes, और sir. साथ में क्या आ गया? HCl. HCl, ये पड़ा हुआ है, ठीक है ना जी? अब क्या लगता है H प्लस आयन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या सिर्फ HCl से आएंगे? HCl क्या सप्लाई करेगा? HCl सप्लाई करेगा H प्लस आयन, और साथ में क्या सप्लाई करेगा? Cl माइनस आयन। ये बात समझ आ रही है? और H2O क्या सप्लाई करेगा? H प्लस आयन, और साथ में क्या सप्लाई करेगा? OH माइनस आयन। ये बात समझ आ रही है? Yes. Yes, sir. राइट? तो टेस्ट ट्यूब में व्हेन वी टॉक अबाउट H प्लस पीएच के लिए जो H प्लस की बात करते हैं, वो किसकी बात करते हैं? वी टॉक अबाउट H प्लस टोटल एट इक्विलिब्रियम। We talk about H plus total at equilibrium. We don't talk about H plus from HCl. I don't know. Are you guys there? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. What happened? Sir, लैपटॉप की बैटरी गायब हो गई थी।
अच्छा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा पावर सोर्स से। अब अभी कनेक्टेड है? आप लोगों की ना आवाज कट जाती है बीच में। यू नीड टू स्पीक अ बिट लाउडर बिकॉज़ आई गेस द माइक इज नॉट डूइंग फाइन। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. चलो चलो अब जल्दी से कंटिन्यू करते हैं, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। तो हम बात क्या कर रहे थे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या चाहिए? H plus. H प्लस टोटल। वी आर टॉकिंग अबाउट H प्लस आयंस टोटल। इन दोनों को मिला के जो वैल्यू है H प्लस की वो चाहिए यहां पर। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो हमने जो ऊपर काम करा, हमने क्या करा? हमने ले लिया H प्लस फ्रॉम व्हाट? H प्लस फ्रॉम व्हाट? हमने H प्लस किससे ले लिया? सिर्फ HCl से। तो ये जो H प्लस है 10⁻7 है, और ये कौन से वाले हैं? फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम Water. ऐसे नीचे लिख दिया थोड़ा सा दिखाने के लिए। ये H प्लस कहां से आए हैं? कहां से आए H प्लस? हाँ, ये H प्लस कहां से आए बेटा जी? HCl से आए। We also need to talk about H plus coming from what? H2O. From H2O. We need to talk about H plus coming from H2O also. So let's do that. Let's do that. Let's do that. तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है जी? This is at t equal to 0. अच्छा लिख लेते हैं. This is at t equal to, है ना? यहाँ पर ये वाली पिक्चर होगी, ये लिख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं. ये वाली पिक्चर होगी. This picture would be at t equal to 0, and this picture would be at what? T equal to 0 plus. That's how it is. ठीक है जी. तो this picture would be at t equal to 0 plus. That's how it is. ठीक है जी. तो अब शुरू करते हैं इसको. अब हम कह रहे हैं कि हमने HCl से तो H plus निकाल लिए, पर हमें किससे H plus और निकालने पड़ेंगे? किससे H plus और निकालने पड़ेंगे? अब now the internet problem has come up in the system. अभी लैग कर रही है अभी भी? Yes, sir. So this is another issue now, a new issue has to be encountered. और एक बार चेक करो जो लैपटॉप is connected to the Wi-Fi, is it connected correctly? स्पीड का इशू तो नहीं आ रहा? Let me reduce the quality of the video now. Let's not waste. आपको जो है मेरी वीडियो जो है दिख गई होगी, उसको व्यू पे जाकर आप पिन कर दो. मेरी वीडियो आपको दिख गई होगी. नॉर्मल कैमरा मैंने ऑन कर दिया है. आई हैव स्विच्ड ऑन नॉर्मल कैमरा. नाउ गो ऑन द गैलरी व्यू मोड. वहां पे एक व्यू का बटन होगा राइट में, टॉप राइट में. दिख रहा है बेटा आपको? गैलरी. Yes. व्यू में फुल स्क्रीन का ऑप्शन है. So you pin my video and then put it at full screen. Done. Done. Is it done? Yeah. Yes, sir. तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो गई होगी इधर. वो ठीक लग रही है अभी? Is it readable? Yes, sir. चलो ठीक है. तो अब हमने बात किसकी करी थी? हमने बात करी थी ये वाली कि हमने HCl से H plus निकाल दिए थे. HCl से H plus कितने आए थे हमारे? 10 to the power minus 7. 7. ठीक है. HCl से जो H plus आए थे उतने आए थे. अब हम पानी से निकाल रहे हैं क्योंकि हमसे टोटल निकालने हैं. तो पानी जाएगा, पानी टूटेगा, क्या देगा जी? पानी. पानी will give us H plus aqueous and it will give us OH minus. H minus. That's how it is. है ना जी. तो हम कह रहे जी अब पानी की वैल्यू लिखेंगे नहीं कुछ भी, है ना. या पहले मान लेते हैं ये कुछ था, है ना. ठीक है जी, ये कहानी चल रही है. अब जी ये नहीं था, कुछ भी नहीं था पहले स्टार्टिंग में.
ऐसे मान लो, है ना। या ऐसे मान लो स्टार्टिंग में ऐसे मान लो कि HCl जो है, अब ये केस नहीं है कि पानी में H प्लस आयन नहीं पड़े हुए, पानी में H प्लस आयन अब पड़े हुए हैं, पानी के लिए लग रहा है कि पड़े हुए हैं क्योंकि HCl ने आते तोड़ दिए, ठीक है। HCl जैसे ही आया वैसे उसने H प्लस आयन दे दी, कितने 10 to minus 7 10 to minus 7, ठीक है। तो ऐसे मानेंगे कि जी H प्लस आयन ऑलरेडी आ रखे हैं, कितने आ रखे हैं 10 to the power minus 7, ये भी, और ये नहीं आ रखा, सॉरी, और ये नहीं आ रखा, ये बिल्कुल नहीं आ रखा, That's what it is. ये मान रहे हैं। तो ये काम हम कर रहे हैं t इक्वल टू 0 प्लस पे, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। इक्वल नहीं आया, 0 प्लस पे कर रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं। 0 प्लस क्या है, वो कौन सा टाइम है, क्या तुक्का मारोगे, क्या टाइम है वो, कौन सा टाइम है, डालने के बाद, HCl डालने के बाद, यस, इट इज दैट टाइम जब हमने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। HCl डालते ही H प्लस आयन आ गए, ये कितने आ गए थे, ये आए थे किससे, फ्रॉम HCl से, ये बात क्लियर है, यस सर, ठीक है। तो एक तो पानी का कुछ पत्थर पड़ा हुआ है ऐसे मान लो, और एक ये पड़ा हुआ है टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये कंटेंट्स पड़े हुए हैं, दैट्स व्हाट इज। डू वी हैव एनी OH माइनस राइट नाउ, नो, नो, अज्यूमिंग कि पानी का पत्थर नहीं टूटा, ऐसे मान लो पानी पत्थर है थोड़ी देर के लिए, पानी का पत्थर नहीं टूटा तो OH नहीं है बिल्कुल भी। अब इक्विलिब्रियम आया, अब सिस्टम में क्या आया, इक्विलिब्रियम, तो पानी का पत्थर थोड़ा सा कंज्यूम होगा, होगा, यस, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी 1 है, इसकी एक्टिविटी 1 है, क्या बोल रहे हो बेटा, सर रिपीट कर दो, मैं क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि ये पानी थोड़ा बहुत कंज्यूम भी होगा तो उसकी एक्टिविटी हम क्या लेंगे, पानी अगर कंज्यूम होगा तो भी उसकी एक्टिविटी हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि पानी की एक्टिविटी 1 लेते हैं, हमने भी रट्टा लगा रखा है, इसकी लॉजिक भी नहीं कहे अभी हम, ये बात क्लियर है, यस सर, ठीक है। अच्छा जी, अब पानी का पत्थर टूटा तो हमने कहा था जी H प्लस आयन कितने आए, X मान लिए, तो जितने H प्लस आए उतने OH आएंगे क्योंकि 1:1 का रेशियो है, ये तो स्टोइचियोमेट्री से आ रहा है, मूल कंसेप्ट से आ रहा है, ये क्लियर है सबको। यस सर, तो पानी के अगर H पत्थर टूटे तो ये X आएंगे, ये भी X आएंगे, पानी का एक टूटेगा तो ये एक आएगा, ये एक आएगा, पानी दो टूटेंगे तो ये दो आएगा, ये दो आएंगे, एंड सो ऑन। तो इसका X टूटे तो ये X आएगा, ये X आएगा, तो टेस्ट ट्यूब में H प्लस कितना हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब में पहले H प्लस था कितना 10 to the minus 7, राइट। अब पानी से H प्लस और कितना आ गया, 10 to power minus 7, नहीं 10 to the 7 नहीं आया, X आया, X तो में निकालना है, वो 10 to the 7 तब आता है जब न्यूट्रल पानी होता है। अभी हम वेरिएबल ले रहे हैं कि पानी से H प्लस कितना आया, X, और जितना H प्लस आया उतना ही क्या आया होगा पानी में, जितना H प्लस आया OH उतना ही क्या आया होगा, OH माइनस आया होगा। H प्लस कितना हो गया 10 to the 7 plus X, OH माइनस कितना हो गया X, X, ठीक है। अच्छा, और कोई आयन है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये तो विजुअलाइज द टेस्ट ट्यूब, वी हैव Cl माइनस, Cl माइनस कितना है, आर यू एबल टू फील दिस, Yes, sir. yes sir, जी HCl से क्या क्या आया था, HCl से आया था ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दैट्स हाउ इट इज। जी H2O से कौन सी वैल्यू आई टेस्ट ट्यूब के अंदर, जी H2O से वैल्यू कौन सी आई, H प्लस की वैल्यू आई, और किसकी वैल्यू आई जी, OH माइनस की वैल्यू आई। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ yes रही है, sir, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि T इक्वल टू में H प्लस कितना हो गया 10 to the power minus 7 plus X from water, that's all। और ये वाली वैल्यू कितनी होगी X, इज दिस क्लियर, yes sir, और ये मल्टीपल किसके बराबर होना चाहिए, KW, 10 to the minus 14 KW, yes KW के बराबर होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है, Yes, sir. तो इंपॉर्टेंट बात है कि KW is 10 to the power minus 14, that is equal to H plus at equilibrium, ये बोला था हमने, into OH minus at equilibrium, ये बोला था ना हमने। yes sir, और अब ये क्लियर हो रहा है ये H प्लस कौन सा, दिस H प्लस हैज टू बी टोटल H प्लस, कि एक बार टेस्ट ट्यूब में H प्लस आ गया, एक बार टेस्ट ट्यूब H प्लस आ गया तो कोई याद नहीं किया वो कहां से आया था,
उसको ये याद नहीं कि वो पानी से आया था, वो HCl से आया था, वो तो H प्लस है। पानी को लग रहा है वो H प्लस सारा सारा मेरे से आया, पानी को लग रहा है जितना भी OH है वो सारा सारा किससे आया, पानी से आया। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Right? So this is H plus total, this is OH minus total. That's how it is. So we need to solve this. So we need to solve a new equation now. H plus at equilibrium. H plus at equilibrium is how much? 10 to the power minus 7 plus x into what is the value of OH minus at equilibrium? X. So this value becomes equal to what? 10 to the power minus 10 4. to the power minus 40. समझ आ रही है बात? ये बात समझ आ रही Yes, है? sir. ठीक है। और ये इक्वेशन देखते ही ये फीलिंग आ रही है that automatically implies that x will be less than 10 to the power minus 7. This pure मैथ्स की कहानी हो रही है कि जब ये नहीं था काट देते हैं, तो x into x was equal to 10 minus 14. फर्स्ट क्वेश्चन we did. याद आ रहा है? Yes, sir. x into x was 10 minus 14. तो x की वैल्यू क्या आई थी? 10 to the power minus 40. 10 to minus 7. नहीं 10 to minus 14 नहीं, जब अगर ये नहीं होता, पुराना क्वेश्चन याद है? फर्स्ट क्वेश्चन ये वाली कहानी है Yes, sir. कि जब प्योर पानी है तो हमने कहा था ये भी x एंड x इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 minus 14. क्यों? क्योंकि सिर्फ पानी पड़ा हुआ है. H प्लस का कोई और सोर्स है कोई H प्लस का सोर्स और नहीं है, ना OH का ना H का है, H प्लस का है अगर प्योर पानी है. तो ये भी x दोनों का मल्टीपल 10 minus 14. x की वैल्यू क्या आ गई थी? 10 minus 7. 7. राइट. तो अब वापस आते हैं, वी कम बैक टू दिस. राइट. तो अब हम कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होता, अगर ये एक्सटर्नल H प्लस नहीं होता, तो हम बोलते हैं पानी से H प्लस कितना आया, यहां पर ये वाली वैल्यू, पानी से H प्लस कितना आया x, और OH भी कितना आया x, और ये नहीं था तो x इंटू एक्स का मल्टीपल कितना हो जाता? 10 raised to power minus 14. माइनस 14. तो x की वैल्यू क्या हो जाती? मल्टीप्लाई सॉल्व करते तो x की वैल्यू क्या हो जाती? 10 raised to power minus 7. 10 टू माइनस 7 हो जाती. राइट. अब हम कह रहे हैं इस वेरिएबल के साथ एक पॉजिटिव वैल्यू है. राइट. तो हमारे पास दो नंबर्स हैं, a इंटू बी इज लेट्स से 25 और 100, लेट्स से 100. राइट. ये कहानी चल रही है. या a इंटू ए लिख लो, a इंटू ए इज 100, a इंटू ए इज 100. तो वो क्लियर सी बात है कि ये वाली वैल्यू भी 10 होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू भी 10 होनी चाहिए, सच दैट द मल्टीपल बिकम्स इक्वल टू व्हाट? 100. ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Right. Now if I say I have some value, let's say 20 plus a into a is equal to 100 कर देता हूं मैं, let's say. तो क्लियर सी बात है ना कि a can't be 10. अगर a 10 हो गया तो ये भी 10 हो गया, a 10 ये भी 10, तो दोनों 10 अगर हो गए तो 10 into 30 हो जाएगा. आंसर क्या हो जाएगा? 300. तो इस वैल्यू को तुमने बढ़ा दिया ना. यहां पर जो ड्राइंग है ये स्टार क्लाउड मान लो, क्लाउड एंड स्टार है, क्लाउड की वैल्यू तुमने ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया है. 20 तो उसमें है ही. Yes, sir. तो ये बात ये समझ आ रहा है कि ए की जो वैल्यू है वो प्रीवियस वैल्यू से कम होनी चाहिए. ये वाली वैल्यू फॉर श्योर हैज टू बी लेस देन व्हाट? 10. ताकि मल्टीपल क्या हो सके वापस 100. अगर एक वैल्यू को बढ़ाओगे तो दूसरी को कम करना पड़ेगा. यहां हमने बढ़ाया किसको? क्लाउड को. ये क्लियर है? Yes, sir. क्लाउड को बढ़ा दिया तो स्टार को Yes, क्या sir. करना पड़ेगा? क्लाउड को बढ़ा दिया तो स्टार को क्या करना पड़ेगा? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा जी. यू नीड टू बी लाउडर. अब करना पड़ेगा. कम करना पड़ेगा. ये बात समझ आ रही है? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं इसे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ये समझ आ रहा है कि अगर इसके साथ एक वैल्यू मैंने ऐड कर दी है तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए वैल्यू? रिपीट कर देगा. अगर इस वैल्यू के साथ मैंने कुछ ऐड कर दिया है तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? Come. कम, ताकि मल्टीपल क्या हो सके? वापस सेम हो सके. तो सेम, लेट्स कम बैक टू दिस.
तो मैंने अब इस वाली वैल्यू के साथ जब कुछ भी ऐड नहीं करा था तो मल्टीपल क्या था 10 to minus 14 और ये आंसर आता था 10 to minus 7 और ये भी आंसर क्या आता था 10 to minus minus 7। ये बात क्लियर है? Yes. sir. अब इसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया, इसके साथ हमने क्या लिख दिया, एक पॉजिटिव वैल्यू लिख दी। ये पक्के से क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये बात समझ आ रही है? तो ये पॉजिटिव वैल्यू अगर आ गई तो अब ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो मैं इसको 10 to minus 7 नहीं कर सकता। अगर 10 to minus 7 कर दिया, ये भी 10 to minus 7 कर दिया, तो ये पूरी वैल्यू 10 to minus 7 से ज्यादा हो जाएगी। अगर ये भी 10 to minus 7 है और ये भी 10 to minus 7 हो गया तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 to minus 7 से ज्यादा हो जाएगी ना। Yes, sir. और फिर मल्टीपल 10 to minus 14 वही होगा ही, वो तो ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये बात समझ आ रही है? Why this value has to be less than 10 to minus 7, Yes, sir. राइट? है ना? तो ये क्वेश्चन मार्क लगा लो यहाँ पर और ये लिखना है when you go home and or you have some time in your break period or some substitute period, तो लिखना है why, कि why, how are you able to say this, क्योंकि ये अभी याद है, आज से 1-1.5 महीने बाद याद नहीं होगा, ये याद नहीं रहेगा और भूल जाओगे। तो अभी की अभी जगह छोड़कर लिखना है यहाँ पर कि ये कैसे आए थे, what was the deductive reasoning we did। क्लियर है बात सबको? Yes, sir. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं, we'll just complete this, है ना जी। Let's try and solve this. So it's a quadratic. So we get x square plus 10 to the power minus 7x multiply कर दिया मैंने, और मैं इसको लेफ्ट में लेकर जा रहा हूँ, इसको भी लेफ्ट में लेकर जा रहा हूँ, minus 10 to the power minus 14, that value is equal to 0, है ना। मैं assume कर दूं मैं quadratic solve करनी आती है, तो quadratic is minus b minus 10 to the power minus 7 plus minus under root of b square which is 10 to the power minus 7 का square minus 4 into the value is 1 into a into c is 10 to the power minus 14। ये क्लियर है, राइट? बाय क्या करोगे, ट्वाइस ऑफ a, राइट? I'm assuming तुम्हें रूट्स निकालने आते हैं, ये क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो x की वैल्यू minus 10 to the power minus 7 प्लस वॉट, ये हो गया रूट ऑफ 10 to the power minus 14 माइनस क्या लिखा हुआ है, ये प्लस हो गया, प्लस एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ 4 into 10 raised to power minus 14, that's how it is, by what, by 2, that's the value which has come up। ठीक है, हमने कुछ गलती तो नहीं करी ना इसमें, एक मिनट देख लेते हैं, ये वाली वैल्यू आई, फिर बी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो वी हैव डन एवरीथिंग राइट, कहीं गड़बड़ नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, x कम्स आउट टू बी माइनस 10 to the power minus 7। अच्छा, नेगेटिव क्यों हटा दिया, वाई रिजेक्ट नेगेटिव, वाई हैव वी रिजेक्टेड नेगेटिव, बताओ, एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. मैं कह रहा हूं नेगेटिव क्यों रिजेक्ट करा बेटा जी, सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों रिजेक्ट करा, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। नहीं, वैल्यू छोटी नहीं, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना, अगर x नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो व्हाई, बिकॉज देन x वुड बी नेगेटिव, बिकॉज देन x वुड बी नेगेटिव, और x नेगेटिव अलाउड है, राइट? यू नीड टू रिस्पॉन्ड, एल्स द क्लास विल बिकम वेरी 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 स्लो। x नेगेटिव हो गया, समझ आ रही है बात? Yes, Is it sir. clear? अगर x Yes, नेगेटिव sir. हो गया तो उससे नुकसान क्या है, मतलब अजीब बात हो जाएगी ना, x कांट भी नेगेटिव, क्योंकि x आया कहां से था, कहां से आया था x,
HCl. H2O से X आया कहां से था? H2O. H2O से। ये 10 to minus 7 कौन सी वैल्यू थी? HCl वाली। H प्लस से जो आया था, ये H प्लस की वैल्यू है, पर कहां से आई थी? HCl से। तो X तो वो वैल्यू है जो पानी से आई है। अब पानी से नेगेटिव वैल्यू थोड़ी आ जाएगी कि टूट रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी ना। ये बात समझ आ रही है? यहां पर ही हमें क्लियर है, यहां पर ही क्लियर है हमें कि दिस X विल बी फॉर श्योर व्हाट? अ पॉजिटिव वैल्यू। ये जो X की वैल्यू है, इट हैज टू बी व्हाट? ग्रेटर देन 0। दिस वैल्यू कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जल्दी से आगे चलते हैं। वी डोंट हैव मच टाइम, वी हैव टू रैप अप, राइट? सो आई वांटेड टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन सो दैट वी गेट क्रिस्टल क्लियर। फिर दोबारा करेंगे इसको, कंप्लीट तो करेंगे ही। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव है तो हमने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है जी, अब ये वाली वैल्यू क्या होगी? तो दिस बिकम्स इक्वल टू व्हाट? प्लस 10 to the power minus 7 into root 5। सॉल्व करा है इसको हमने। ये 5 10 minus 14 हो जाएगा, 10 minus 14 बाहर आएगा, 10 minus 7 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. By 2, right? So this value becomes equal to 10 to the power minus 7 into minus 1 plus 10 to the power minus root 5 by 2। ये वाली वैल्यू आ गई? ये बात समझ आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है ना? तो ये कहानी चल रही है। अब ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकाल लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली निकालनी पड़ेगी वैल्यू, थोड़ा सा हो जाएगा। तो रूट 5 निकालना पड़ेगा ना। रूट 5 माइनस 1 की क्या वैल्यू है? तो 2 का 4 का रूट इज 2 है ना, एंड 9 का रूट कितना हो गया? 3 हो गया है ना। तो ये 5 का रूट 2.5 भी ले सकते हैं। 2.25 के करीब होता है शायद। ये करना जरा, 2.25 इंटू 2.25 वैल्यू कितनी आ रही है? 5 इंटू 25। अभी टाइम नहीं लगाते, कैलकुलेटर तो होगा मेरे पास यहाँ पर ना। कौन टाइम बर्बाद करे? डू आई हैव अ कैलकुलेटर हियर? नो आई डोंट। कितनी आ रही है वैल्यू? 5 इंटू 5 25, 5 दूनी 10 12, एक ऊपर 5 दूनी 10, कितनी आ रही है? 5.06. तो ठीक है ना, 5.06 करीब आ रही है। तो 2.5 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। सो टेकन इट एज अप्रोक्सीमेट एज 2.25। ठीक है, तो ये ले रहे हैं हम 2.25, राइट? सो या so this value becomes equal to X is equal to 10 to the power minus 7 into minus 1 plus 2.25 by 2. So X is equal to 10 to the power minus 7 into what? 1.25 by 2. ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, है ना। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो X की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक्चुअली हमें X की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें निकालना था 1 plus X। अच्छा देखो, हम ये सारा काम कर क्यों रहे हैं? हमारा एम क्या था? क्या निकालना था हमें? अगर जस्ट रिकॉल करें, व्हाट वाज आवर एम? टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। बिल्कुल बेसिक पे जाते हैं। Yes, sir. हमने देखा था कि ये जो हमने सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था? वी सॉल्व दैट, ये फर्स्ट 5th क्वेश्चन क्या कि जी HCl से H प्लस कितना आया? 10 to minus 7। तो हमने कहा pH 7 नहीं बोल सकते, क्योंकि जो ये H प्लस है टोटल नहीं है। वी वांट टू टॉक अबाउट व्हिच काइंड ऑफ H प्लस, व्हिच इज द टोटल H प्लस, नॉट द H प्लस कमिंग फ्रॉम HCl। तो ये सारी कहानी किसके लिए थी? Total H plus. टू फाइंड टोटल H प्लस। यस, तो टोटल H प्लस निकालना है। तो टोटल H प्लस कितना है टेस्ट ट्यूब में? टोटल H प्लस कितना है टेस्ट ट्यूब के अंदर? 10 to power minus 7 plus X. सो हमें X नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है? 10 to minus 7 प्लस X निकालना है। तो उस पे जाते हैं। लेट्स कम ऑन दैट। तो हमारे पास वहां पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे। हमारे पास X आ गया था, राइट? Yes, X की वैल्यू आ गई थी। सो वी कैन जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट? 10 to power minus 7 plus X. या तो इसको लिख लो जल्दी से, राइट? सो वी टॉक अबाउट concentration of H plus total at equilibrium. That value is 10 to the power minus 7 plus X, so it is 10 to the power minus 7 plus
कितनी होगी जी? 10 to the power -7 into -1 plus √5/2. दैट्स द वैल्यू। ठीक है जी, तो यहां बात करें तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 10 to the power -7 कॉमन आ जाएगा एंड देन दिस विल बिकम 1 plus √5/2। बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सो निकाल लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज H plus total at equilibrium, it is 10 to the power -7 into 1 plus √5. √5 was approximately how much? 2.25/2. So this becomes equal to 10 to the power -7, right, into what? 3.25/2 आ गया? समझ आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, चेक करो क्या इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन 10 to the power -7? इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन 10 to the power -7? Yes, sir. ये वाली वाली ग्रेटर देन 1 है ना? दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है बात? ये बात Yes, समझ आ रही है? Yes, ठीक है, ये मैंने क्यों दिखाया? क्योंकि H प्लस की वैल्यू 10 to the power -7 से ज्यादा आ गई तो पानी क्या है? एसिडिक या बेसिक? Acid. पानी क्या है? Acid. Acidic. So this implies 10 to the power -7 molar HCl। इसकी बात करें so that implies इसके अंदर has acidic और is acidic solution। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. That implies the solution is what? Acidic, है ना? अब इसकी pH निकाल लेते हैं, जल्दी से खत्म करेंगे फिर, राइट? इसकी pH निकाल लेते हैं। We'll try to find the pH। तो एक नोट लिख लो जल्दी से। We'll try to write a note कि 1 is equal to 10 to the power 0, है ना? 2 is equal to 10 raised to power 0.3010। तो लॉग्स अभी थोड़ा कम कराया हमने, तो अभी या 10 to the power 0.3 भी ले सकते हैं इसको, है ना? 3 is equal to 10 raised to power 0.4771। तो इसको 10 raised to power 0.48 भी ले सकते हैं, राइट? 4 is equal to 2 square, so that becomes equal to what? 10 raised to power 0.3 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा 10 raised to power 0.6। तो ये बाय हार्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए तुम्हें, है ना? और हो भी जाएंगे जब क्वेश्चंस करोगे तो। दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 याद करनी है। 5 वैल्यू इज 10 raised to power 0.7, है ना? 6 की वैल्यू की बात करें तो 6 इज इक्वल टू 2 into 3। एक्सपोनेंट्स लगा रहे 37 के, है ना? 2 की वैल्यू क्या थी? 0.3। 010. Oops, what has happened? 0.3 into and 3 की वैल्यू क्या थी? 0.4771 और 0.48। तो कितना हो गया? 10 raised to power 0.78। 6 की वैल्यू आ गई 10 raised to power 0.78। ठीक है जी, है ना? तो 7 की बात कर लेते हैं। 7 याद ही करना पड़ेगा, 10 raised to power 0.85, है ना? 8 की बात करते थे 10 raised to power 0. चलो ये भी निकाल लेते हैं, जो हम निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं, है ना जी? तो ये हो गया 2 क्यूब। 2 क्यूब का मतलब हो गया 10 raised to power 0.3 का होल क्यूब। तो ये वाली आती है 10 raised to power 0.90, राइट? और यू कैन राइट 0.9030 ऑल्सो, डज नॉट मैटर, है ना? 9 की बात करें तो 9 विल बी 3 स्क्वायर, सो इट इज 10 raised to power 0.4771 का स्क्वायर। तो ये बोल देते हैं दिस इज इक्वल टू 10 raised to power 0.95 बोल देते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली 995। दैट्स हाउ वी राइट। ठीक है जी, और 10 तो बताइए जी, 10 इज इक्वल टू 10 to the power 1, है ना? क्या बात बोली जी आपने, आंखें खुलती हमें तो पता ही नहीं था, है ना? तो ये कहानी चल रही है। तो ये बाय हार्ट ये वैल्यूज याद नहीं चाहिए, राइट? लिखना पड़ेगा 2 बारी कि जी दोबारा से लिख लेते हैं कि 1 was 10 raised to power 1, 2 was 10 raised to power 0.30, है ना जी? 3 is equal to 10 raised to power 0.48, 4 10 raised to power 0.60, 5 10 raised to power 0.70, 7.
है ना। 6 की बात करते हैं, 6 is 10 raised to power 0.78, 7 is 10 raised to power 0.85, and 8 is 10 raised to power 0.90, and 9 is 10 raised to power 0.95, and 10 is obviously 10 raised to power 1. ये जो 8 वैल्यूज हैं, पहली और आखिरी तो याद ही ऑब्वियसली, ये 8 वैल्यूज बाय हार्ट याद होनी चाहिए, so that you are able to get answers easily. Will not apply any formula. ठीक है जी, ये अब आगे वर्ड है, इसको लिख लेना, अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क अगेन, जल्दी से खत्म करते हैं, वी डोंट हैव मच टाइम. ठीक है, तो Sir, please, I think time is up. It's nine. yeah, so I'll just wrap up in 2-3 minutes, that's it. I just need to complete this. ठीक है, तो हमने h plus कितना निकाला था, h plus निकाला था हमने 10 to the power -7 into 3.25 by 2, ये निकाला था. Yes, You sir. need to respond. Is this clear? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अच्छा, फिर ये 10 to the power -7 into 325 को लिख रहा हूं मैं, 25 into 4 is 100, into 8 करेंगे तो 200 हो जाएगा, into 12 करेंगे तो 300 हो जाएगा. ओह, 13 भी आ गया. तो into 13 करेंगे तो 325 आ जाएगा, into 13 करेंगे. So this value is 25 into 13 by 2 into 100. इसको जाके सोचना, बेसिकली ऐसे ही निकाल रहे हैं हम ये वाली वैल्यू, है ना. तो अब यहाँ पर 13 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें 12 और 13 चाहिए होगा. ओहो, so you need to find 12 and 13. ठीक है, तो this I am just giving you as a, तुम 12 की वैल्यू निकाल लोगे 3 into 4 करके, Yes, sir. और क्या कहते हैं 14 की वैल्यू निकाल लोगे 2 into 7 करके. Yes, sir. समझ आ रही है बात. तो तुम्हें पता है 3 की क्या वैल्यू है, तुम्हें पता है 4 की क्या वैल्यू है, इन दोनों को पुट करोगे तो 12 की वैल्यू आ जाएगी. Yes, sir. ऐसे ही तुम्हें 7 की वैल्यू पता है और 2 की वैल्यू पता है, इनको यूज करके 14 की वैल्यू आ जाएगी. एंड 13 लोगे तुम इसका एवरेज. ठीक है, मतलब दिस इज 10 रेज टू पावर 0 पॉइंट कितना आ गया 48, ये 10 रेज टू पावर 0.6, ये आ गया 10 रेज टू पावर 0.3, ये आ गया 10 रेज टू पावर 0.85. तो ये सम कितना हो गया, ये कितनी आ रही वैल्यू 10 रेज टू पावर 1.08 आ गया, और ये कितना आ गया 0.3 ऐड करोगे तो 10 रेज टू पावर 1.15 आ गया. Yes, sir. ठीक है, एवरेज लो 8 plus 58 plus 15 by 2 कर दो, तो ये 23 by 2 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 12 मान लो. तो ये 10 रेज टू पावर 1.12 ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली. क्लियर है बात? Yes, sir. आई एम टेकिंग दिस एज 10 रेज टू पावर 1.12 One. approximately. This 23 by 2, that value becomes equal to 11 by 11.5 होगी approximately, तो मैं इसको 12 ले रहा हूँ. क्लियर है? ठीक है, Yes, इसको दोबारा sir. करेंगे in some other session we'll do again. तो 13 की वैल्यू आ गई, Yes, sir. 13 की वैल्यू आ गई ना. Yes, sir. ठीक है, जल्दी से. तो 10 to the power -7 into ये 25 क्या है, इट इज 5 स्क्वायर. ठीक है, 5 की वैल्यू क्या थी 10 to the power 0.7, Seven. इसका स्क्वायर. 13 की वैल्यू क्या आई है 1.1. 1.12, राइट, बाय 2. अच्छा, 2 की वैल्यू क्या थी 10 रेज टू पावर 0.30, Yes, sir. Yes, sir. और 100 की वैल्यू, ये तो 10 by 2, कैसी बातें कर रहे हो. ठीक है, अब जल्दी से निकाल लेते हैं. ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 रेज टू पावर -7 बाय 10 रेज टू पावर -2 नीचे, है ना. अच्छा, ये 10 टू द पावर 1.4 हो गया, है ना. इन प्लस कैन आई राइट दिस इज प्लस 1.12, ये ऐड हो जाएगी ना पावर्स, Yes, sir. माइनस व्हाट -0.3, एक्सपोनेंट्स कर रहे हैं हम, राइट. सो व्हाट इज 1.4 प्लस 1.12, ये कितना हो गया 2.52, और इसमें माइनस क्या करना है 0.3, तो कितना हो गया 2.22. ये क्लियर है, Yes, sir. right? So we get this value as H plus total at equilibrium, that value was 10 to the power -7 plus x, that has finally come down to
10 to the power minus 5 into, ये 10 to minus 5 है, into what? 10 raised to power no minus 5 है ये, हाँ minus 5 है, मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पर, इतनी हाई वैल्यू नहीं आ सकती ना ये. 5 square is this much and then this is 10 to the power 1.14. अच्छा ये 2 था ना, this was not minus 2, this value was plus 2, right? So this value becomes equal to 10 raised to power minus 9 into what? 10 raised to power 2.22. ये आ रही है ना वैल्यू, जल्दी बताओ. Yes, sir. ठीक है, तो 9 में से 2.22 सबट्रैक्ट करते हैं, ये कितना हो गया? 8, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6. इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो 10 रेज टू पावर माइनस 6.78 आ गया. क्या आ गया? क्या आ गई वैल्यू? H प्लस की टोटल वैल्यू आ गई. इज दिस अ ग्रेटर वैल्यू देन 10 to the minus 7? Yes, sir. Yes, sir. Yes, obviously it is a greater value than 10 to the minus 7. So what's the value of pH? ये R होगी ना pH वैल्यू. Yes. तो pH की वैल्यू क्या आ गई? 6.78. 6.78. And that implies water is what? Solution is acidic. समझ आ रही है बात? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ रही है? तो pH 7 नहीं थी जो हमने करा था वहां पर ऊपर, वो pH 7 नहीं थी. pH actually 6.78 आ रही है. It is acidic. Is this clear? Yes. Now try and do a similar question. Question number 6. खुद से करना. We'll discuss in another session. 10 to the minus 8 molar HCl. इसको solve करने की कोशिश करना. यहाँ pH के लिए निकालना. I think answer is pH शायद 6.85 आती है. I don't remember exactly. पर solve करके देखना. pH वैल्यू क्या आएगी? 6.85. Is this clear? Yes, sir. So we'll meet in another session and we'll try to understand why question number 1 was wrong, the way we solved. Answer सही आया था, why the answer was right and why the way was wrong, and आगे क्या करना है. Is this clear? Yes, sir. And then probably we'll talk about the buffer also. That's how it is. ठीक है, तो इसको घर जाके लिखना बहुत जरूरी होगा. आज की कहानी को 2 क्वेश्चन कर रहे हैं हमने, उसको लिखना बहुत जरूरी है. जब तक लिखोगे नहीं तो वो खून में नहीं जाएगा. It is very important that you absorb everything, right? So I hope समझ आया होगा आज की क्लास में कुछ. Yes, sir. चलो ठीक है, ऑलराइट, टाटा बाय बाय. Yes, sir.